Good morning students, welcome again to our online classes. How are you? Hope you all are fine and safe at your home and doing well about your studies. Okay? Students, as you know, I am your EVS teacher, Mrs. Shelja Bissa from Winner Small Wonder Secondary School. I hope you all have seen my previous videos and do complete your work. और आप अपना you have to do work or read lessons, writing, reading, all things. Okay students, today I am going to teach you a new chapter, insects and creepy crawlies. Okay, if you have any problem, ask me. I will again and again I will solve your problems. Okay, listen students, I will explain both of the languages, Hindi as well as English. Okay, because I want you all know all things, understand very well. Okay students, all clear? Yes. So this is your EVS book. Start, open chapter 10, insects and creepy crawlies. Okay students, and today we discuss about insects and creepy crawlies. कौन कौन से होते हैं इंसेक्ट और creepy crawlies? Cockroaches, ants, houseflies, mosquitoes, honeybees, spiders, worms or some book activity. Okay, understand? So let's start students. Okay, open this chapter, insect and creepy crawlies. This is book page, remember. Okay, put the pencil also and write here. Look at the pictures and identify the insects. Okay, so first picture is, this is ant, so we will write here ant. Okay, next one is house flies. Okay, and next is cockroach, so we will write here their name. Okay, is that clear? Now reading, shall we start reading? Okay, so this is your book page. Put a pencil here like this. Okay, and read with me. Okay students, insects are the creatures that form the largest group of living beings on the earth. More than a million different kind of insects are present on the earth. और जो insects होते हैं, have you seen insects like ants, cockroaches and houseflies, mosquitoes? और आपने देखा होगा लार्जेस्ट ग्रुप में होते हैं, बहुत सारे ग्रुप में होते हैं एंड और क्या करते हैं, मिलेनियम डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, बहुत सारे काइंड के, लाइक एंड्स होती है, कॉकरोचेस होते हैं, इतने सारे ग्रुप में वो अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ इंसेक्ट एंड क्रीपी क्राउलीज. ओके, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs. Some of them have wings for flying. Some example of insects are cockroaches, ants and houseflies. There are some creatures which crawl on the ground. For example, spider and worms. They are called creepy crawlies. You all have seen some insects like cockroach and मॉस्किटोज एंड बहुत सारे आपने क्या देखे हैं, इंसेक्ट्स देखे होंगे. और इंसेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी क्या होते हैं, 6 legs होते हैं. आपने देखे हैं उनके 3 आगे और 3 बैक साइड में legs होते हैं. सो इंसेक्ट्स हैव 3 legs. ओके, सम हैव सम विंग्स. आपने देखे हैं कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज होती हैं, है ना, उनके क्या होते हैं, विंग्स, जिनसे वो क्या करती हैं, to fly. Okay, insects are cockroaches, ants and houseflies. Sorry.
उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं जिनसे वो फ्लाई कर सकती हैं. ओके, देयर आर सम क्रिएचर विच क्राउल ऑन ग्राउंड. और कुछ क्या होते हैं इंसेक्ट्स जो ओनली ग्राउंड और वॉल पे क्या करते हैं, क्राउल करते हैं, है ना. उनको कहते हैं क्रीपी क्राउलीज. दे आर कॉल्ड क्रीपी क्राउलीज. कौन से होते हैं, वर्म और स्पाइडर. वर्म आपने देखे, अर्थ वर्म वगैरह देखे, जो कि सैंड में रहते हैं, है ना. सो दे आर कॉल्ड क्रीपी क्राउलीज. क्रीपी क्राउलीज कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं, which crawl on ground. Okay, they are crawl on ground. They are called creepy crawlies. Okay, so insects have 6 legs. Like और उनकी क्या होते हैं, they have wings for flying. Okay, किन के कौन से insects के wings होते हैं, cockroach and house flies. Okay, and some creatures crawl the ground. ग्राउंड के ऊपर, क्राउल ऑन द ग्राउंड. और जो ग्राउंड पे क्राउल करते हैं उनको क्या कहते हैं, यस, क्रीपी क्राउलीज. सो एग्जांपल इज स्पाइडर एंड वर्म्स. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. लुक दिस पिक्चर. वी हैव वन इंसेक्ट, ओके, एंट. और एंट की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज हेड, सेकेंड इज थ्रॉक्स एंड लास्ट इज एब्डोमन. ये देखो, यहाँ से 1 2, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये, अब ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया. ओके, सो इंसेक्ट बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. ओके, इज दैट क्लियर? एंड फर्स्ट वन इज हेड. इट बियर्स the main sense organs like eyes, antennas and the part of the mouth of an insect. और जो माउथ, जो मेन पार्ट होता है इनका, आपने देखा है एंट होती है या जो भी होते हैं, कॉकरोचेज होते हैं, उनके यहाँ ऊपर क्या होते हैं, एंटीनाज होते हैं ना. सो मेन पार्ट जो हेड पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स. ओके, लाइक आईज और एंटीनाज. इनके सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, आईज एंड एंटीनाज. ओके, एंड द पार्ट ऑफ द माउथ ऑफ एन इंसेक्ट. और उसमें क्या होता है, हेड पार्ट में उनका माउथ होता है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, हेड. और हेड, इट बियर्स मेन पार्ट, सेंस ऑर्गन लाइक आईज, एंटीनाज एंड माउथ पार्ट. ओके, इज दैट क्लियर? लुक दिस पिक्चर. फर्स्ट पार्ट हेड है, हेड में ये वाला पूरा पोर्शन है जिसमें क्या है, एंटीनाज है. ये देखिए एंटीनाज लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज आईज. लुक दिस पिक्चर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट. ओके, एंड सेकेंड पार्ट, थ्रॉक्स. सेकेंड पार्ट, लुक दिस पिक्चर. From here to here. Okay, this is thorax part. It is the middle portion that bears the legs and wings of the insects. और ये देखिए जो सेकंड, लुक दिस पिक्चर. इस पिक्चर में जो ये सेकंड पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक थ्रॉक्स. ओके, थ्रॉक्स में क्या होता है, लेग्स होते हैं. ये देखिए लेग्स, दिस वन इज लेग एंड विंग्स. जिनमें विंग्स होते हैं, वो भी विंग्स कहाँ होते हैं, इस पोर्शन में, पोर्शन में, थ्रॉक्स वाले पार्ट में. ओके, इज दैट क्लियर? सो सेकेंड पार्ट इज थ्रॉक्स. इट इज द मिडल पार्ट ऑफ इंसेक्ट एंड इट बियर्स legs and wings. Okay, is that clear? Next one is abdomen. The last part is abdomen, this one, here, from here to here. Okay, it is the stomach of an insect. It is divided into segments. और देखो ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला, ये पार्ट होता है एब्डोमन. और एब्डोमन में क्या होता है, स्टमक होता है इनका. जो भी ये फूड ईट करते हैं, जो डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, वो सब कहाँ चलता है, एब्डोमन में. ओके, एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. आपने ये देखा होगा छोटे छोटे सेगमेंट्स बने होते हैं इसके ऊपर. ओके,
Is that clear? So these are the 3 body parts of insects. Okay, first one, head, thorax and abdomen. Look this picture, head, thorax and abdomen. This one is head, this one is thorax and this one is abdomen. Okay, हेड में होते हैं आईज एंड एंटीनास, थ्रॉक्स में होते हैं लेग्स एंड विंग्स, ओके, एंड एब्डोमेन में होते हैं स्टोमक. ओके, इज दैट क्लियर? यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 or 3 times. ओके, next is cockroach. Okay, they live in dark places. They hide themselves during the day but are very active at night. They eat kitchen garbage, food scraps, etc. Okay, look this picture. Have you seen this picture? Have you seen the cockroach? Oh, lots of cockroaches are there na in kitchen. जब हम किचन की बहुत सफाई नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे कॉकरोचेज आ जाते हैं. और कॉकरोच क्या करते हैं, लिव इन डार्क प्लेसेस, जहाँ अंधेरा होता है, डार्क प्लेसेस होते हैं, वहां पे कॉकरोच ग्रुप में रहते हैं. ओके, दे हाइड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द डे. ओके, और जब डे होता है तो वो हमें कोई कॉकरोच दिखाई नहीं देता है, वो अपने आप को हाइड करके रखते हैं. बट दे आर वेरी एक्टिव एट नाइट, और नाइट में आप देखो हमें उनकी वॉइस भी टिक 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 की वॉइस भी नॉइज होती है ना. सो cockroaches live in dark places. They hide themselves during the day but are very active at night. और नाइट में क्या होते हैं, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं. और क्या ईट करते हैं, दे ईट किचन गार्बेज एंड फूड स्क्रैप्स. ओके, जो भी हमारा फूड आइटम बिखरा होता है और जो भी हमारे गार्बेज बिखरा होता है, उन सबको वो क्या करते हैं, दे ईट. Okay, is that clear? Next is ant. They are called social insects because they live in groups. आपने ant देखी होगी, ant means चींटी, देखिए ना, और आपने देखा कि चींटी अकेली कभी नहीं होती है. They live in ग्रुप में होती है, बहुत सारी चींटियां होती है ना. So they are called social insect. Why they are called social insect? Because they live in group. Okay, and black ants live in well organized nest. और जो black ant होती है वो क्या करती है, प्रॉपर अपना नेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, नेस्ट बना के रहती है. They eat small particle of leftover food. और ant क्या ईट करती है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ लेफ्ट ओवर फूड. जो भी हम ईटिंग करते हैं, जब हम मील ईट करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, वहाँ जो फूड पार्टिकल्स लेफ्ट हो जाते हैं, उनको कौन ईट करता है. आपने देखा है ना, जब भी कोई स्मॉल पार्टिकल फेल डाउन हो जाता है, उस पर जल्दी से एंट आ जाती है ना. सो दे ईट स्मॉल पार्टिकल ऑफ लेफ्ट ओवर फूड. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, हाउस फ्लाइज. हाउस फ्लाइज बहुत परेशान करती है हमको, है ना. देयर आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट सीन अराउंड अस. और हमारे हाउसेज के अंदर मोस्ट कॉमन इंसेक्ट क्या है, हाउस फ्लाइज. बहुत सारी हाउस फ्लाइज आती है हमारे हाउस में. दे लिव इन डर्टी प्लेसेस लाइक गार्बेज, डंप्स एंड ओपन ड्रेन्स. और वो कहाँ रहती है, डर्टी प्लेसेस. आपने देखा है ना, जहाँ भी हमारा डस्टबिन होता है वहाँ वो अक्सर रहती है. और बहुत सारा जहाँ गार्बेज डंप होता है आउटसाइड में, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी हाउस फ्लाइज आ जाती है ना. सो दे लिव्स इन डर्टी प्लेसेस लाइक गार्बेज डंप्स एंड ओपन ड्रेन्स. अगर ओपन नालीज होती हैं, जो ओपन ड्रेन्स होती हैं, और गार्बेज डंप होता है, वहाँ पे कौन होती है, हाउस फ्लाइज. ओके, is that clear? They are carriers of many diseases and can make us ill. और ये क्या करती है, ये जो हाउस फ्लाई की पिक्चर आप देख रहे हो, ये हाउस फ्लाइज इज वेरी डेंजरस फॉर अस. बहुत सारी डिजीजेस लेकर आती हैं ये,
और हमें इल कर देती है, हमें बीमार कर देती है. वी आर फीलिंग नॉट वेल. ओके, सो दे स्प्रेड डिजीजेज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा एंड डेंसिटी. ओके, क्या क्या डिजीजेस करती हैं? टाइफाइड, कॉलेरा एंड कॉलेरिया एंड डिसेंट्री. ओके, इससे हम क्या हो जाते हैं? इल हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? सो हाउस फ्लाइज आर मोस्ट कॉमन इंसेक्ट. दे लिव्स इन डर्टी प्लेसेस लाइक dumped garbage and open drains. Okay, and they spread lots of diseases like typhoid and cholera. Okay, is that clear? Next, mosquitoes. Now you have seen mosquitoes? Yes, night में बहुत परेशान करते हैं. They are very dangerous insect as they spread harmful disease like malaria and dengue. Okay, जो मॉस्किटोज होते हैं, मॉस्किटोज भी कहाँ होते हैं? डर्टी प्लेसेस में, है ना. एंड मॉस्किटोज क्या होते हैं? हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं. दे आर वेरी डेंजरस इंसेक्ट और दे स्प्रेड हार्मफुल डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू. आपने देखा डेंगू भी बहुत डेंजरस है और मलेरिया भी बहुत डेंजरस डिजीज है. ओके, सो दे स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू. ओके, दे ब्रीड इज स्टैग्नेंट वाटर. और किसमें होते हैं ये? यस, दे ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर. वाटर के अंदर ये ब्रीड करते हैं, एग्स देते हैं. ओके, सो जहाँ वाटर होता है वहां पे लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज की ब्रीड नेक्स्ट टू नेक्स्ट आती है. ओके, इज दैट क्लियर? सो दिस इज वेरी डेंजरस इंसेक्ट जो कि बहुत सारे हार्मफुल डिजीज को स्प्रेड करता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हनी बीज. They are social insects because they live and work in colonies. और honey bee is also a social insect because वो भी क्या रहती है? वो अपना live और work दोनों ही ग्रुप में कॉलोनी में करती है. Is that clear? They give us honey. और हमें आपने देखा होगा honey bees का एक वो पूरा हाउस होता है, उसमें बहुत सारी हनी बीज होती हैं, है ना. So they lives in a group or work in a colonies. Okay, so they are called social insects. They make hives in which they collect nectar from flowers. और ये क्या करती हैं? ये फ्लावर्स से उनका नेक्टर, उनका जो जूस होता है वो कलेक्ट करती हैं और एक हाइव बनाती है. ओके, सो उससे हमें क्या मिलता है? हनी. ओके, is that clear? So honeybees are a social insects. They live and work in a colonies and they make hives which they collect nectar from the flowers. जो कि flowers से nectar लेके क्या करती है? hives बनाती है. Is that clear? Next, spider. You have seen spider? Yes. They make webs to catch their prey. Okay, a spider makes its web on the wall of our house, on the bark of trees, etc. आपने अपने हाउस के अंदर जो फ्लोर्स, अपनी रूफ होती है, उनके कॉर्नर्स होते हैं, उनके अंदर आपने देखा है बैक साइड में बहुत सारे वेब बने होते हैं, जाले से लग जाते हैं. तो वो कौन बनाता है? स्पाइडर. ओके, दे मेक्स वेब टू कैच देयर प्रे. और अपनी वो किसी चीज को कैच करने के लिए क्या बना लेती है? वेब बना लेती है. ओके, वॉल्स पे, हाउस पे, बाग की ट्रीज की बाग पे वो क्या बनाती है? हाउसेस. ये वेब बनाती है. वेब इनका क्या होता है? हाउस. ओके, सो वेब कौन बनाती है? यस, सो दे मेक्स वेब टू कैच देयर प्रे and spider makes it web on the wall and our houses, on the bark of trees, etc. Okay, आपने देखा होगा
चेयर्स रखी होती है तो उनकी जो कॉर्नर्स होती है वहाँ पे भी वेब बना लेती है, फ्लोर्स पे, रूफ पे बना लेती है ना। बहुत सारी ऐसा कोई डर्टी पार्ट होता है जहाँ हम डेली क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे स्पाइडर्स क्या करती हैं, अपना वेब बना लेती है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज worms. ओके, worms लिव इन सॉइल। आपने ऐसा वर्म देखा है जो कि कहाँ रहता है, सॉइल में, अंडर द सॉइल। worms live in soil. The most common worm is the earthworm. और सबसे मोस्ट कॉमन जो वर्म है वो कौन सा है, earthworm. Earthworms are very useful for farmers because they make the soil fertile, which is why they are called farmers' best friend. Okay, so common worm कौन सा है, earthworm. Okay, and earthworm क्या करता है, सैंड में रहता है, अंडर द सॉइल रहता है, और सॉइल को क्या करता है, फर्टिलाइट करता है। ओके, उसको उपजाऊ बनाता है, उस पर वर्क करने, फर्टिलाइट करता है। ओके, एंड which is why they are called a farmer's best friend. क्योंकि फार्मर जहाँ फार्मिंग करते हैं वहाँ पे अर्थवर्म क्या करते हैं, उनकी जो लैंड होती है उनको, उनकी जो सॉइल होती है उनको क्या करते हैं, फर्टिलाइट करते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म इज अ फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। ओके, इज दैट क्लियर? दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थवर्म. ओके, next some time to answer. These are our creepy and crawlies. Okay, I hope you all understand very well. You read this lesson, you read this topic 2 or 3 times daily. Now time to answer. Okay, is that clear? Name the following. Farmer's best friend. Who is the farmer's best friend? Yes, earthworm. So we will write here, farmer's best friend is earthworm. Okay, insect that give us honey. Who gives us honey? Yes, honeybees. Honeybees gives us honey. They collect nectar from the flowers and make a hive. उससे हमें क्या मिलता है, honey. Okay, next, insect that spread typhoid. Houseflies. Okay, so we will write here houseflies. Is that clear? I hope you all understand clearly. If you have any problem, ask me. I will again solve your problem. Okay, and read this lesson 2 or 3 times. Please read it. Okay, see you in next class. Thank you.